students. How are you all? I hope all of you are great at home. Students, today we are going to start our new chapter number 18, pollution of air and water. This lesson is very easy, but it is very important in our day-to-day life. I have heard lots of people, they are telling कि ये lesson में क्या है? Why this chapter is included in science? I think students, the natural things, whatever we are blessed with, due to which we are on this planet, we are able to survive. हम हैं क्यों इस planet पे? Due to all these things. These things were in very pure form when it is made by nature, you know. Due to human activities, it becomes polluted, it becomes impure, and now it's our duty to control all the things. And with the help of this lesson, if I'll able to make awareness in you students, I hope कि मेरा काम हो गया, and you will spread this information among your relatives, your friends, and whoever in your contact. So all the best. I hope you will enjoy this journey, students. First of all, we will start what is the introductory part of this lesson. What we are going to learn in this lesson? We are going to learn about the natural resources, air and water. Okay, so this air and water, how it becomes polluted, how it was, and now how it becomes, and what are the reasons, what are the effects, and what are the remedies by which we can control the pollution. Okay, so these things we are going to learn one by one. First of all, air and water are two of the most important natural resources. Okay, because without air there is no possibility of life within a 2-3 minutes. If air is not present, if oxygen is not present, nobody will survive. So without it you cannot imagine your life. So air and water are the most important natural resources, but various human activities, just by using excessive fossil fuels, by polluting water, by polluting air, by increasing or releasing poisonous gases just like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, sulfur oxide, nitrogen oxide, such a gases we are releasing, means knowingly or unknowingly, I don't know, but most probably I think now the education has spread across the globe, and most of the people have an idea how dangerous it is, even though it is continue. So pollution. First of all, we will discuss about the pollution. What is meant by pollution? So if natural resources or anything which is in pure form, when it is become impure, when some impurities you can find in that particular substance, material which is harmful, which is dangerous, it is called as pollution. This is the fundamental definition of pollution. Scientifically, the contamination of natural resources like air and water by addition of harmful substances due to various human activities is called pollution. This is the scientific pollution which is framed in sentences in your textbook, and so I have told you students, this is pollution. Any substance that pollute, कोई भी सब्सटेंस जो अच्छे चीज़ को, प्योर सब्सटेंस को पोल्यूट करता है, पोल्यूशन करता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज पोल्यूटेंट. हम उसे पोल्यूटेंट बोलते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, इवन डस्ट, स्मोक, दीज आर द पोल्यूटेंट्स. ओके, a substance become pollutant when its concentration increases beyond a permissible limit in the environment. कोई भी चीज़ कब पोल्यूटेंट बनती है, कोई भी चीज़ कब बुरी बनती है, यू कैन को रिलेट इट विथ योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. तो आप लोगों का वॉट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव, कुछ भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है, व्हेन इट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एट सर्टन लिमिट से, सर्टन एक्सटेंट से, तो क्या हो जाता है, इट बिकम पोल्यूटेंट, वो पोल्यूटेंट बन जाता है. सेम थिंग ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, we are using fertilizer for improve the nutrient of soil. Soil का nutrition है जो हमें improve करना है, that's why we are using fertilizer. But when these fertilizers are using, the farmers are using continuously, they are increasing the strength of this fertilizer. They want to just get, उनको yield ज़्यादा चाहिए, and that's why they have increased the strength of fertilizers. Definitely it become pollutant. वो soil के लिए pollutant बन गया है. Carbon dioxide. So carbon dioxide is released when the fossil fuels are burnt.
सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस व्हीकल्स, फॉसिल फ्यूल हम कहाँ यूज़ करते हैं? व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, मशीन्स में यूज़ करते हैं. एंड व्हेन द यूज इज एक्सेस, इट एनहांस, ओके, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, देन इट बिकम पोल्यूटेंट. द कंटामिनेशन ऑफ एयर विथ harmful unwanted substances like toxic gases, smoke and dust, which have harmful effects on both living organisms and non-living organisms. That objects are pollutant, and that reaction, that phenomenon is called as air pollution. Okay, तो एयर पोल्यूशन क्या हो गया? टॉक्सिक गैसेस है, स्मोक है, डस्ट है. इट मे बी फ्रॉम नेचुरल फिनोमिना और आर्टिफिशियल, कुछ भी हो सकता है जो हार्मफुल है. दैट इज वो फिनोमिना है जिससे हम वी आर कॉलिंग इट एयर पोल्यूशन. द हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट. हम उसे एयर पोल्यूटेंट बोलते हैं जो एयर पोल्यूशन करता है. Air pollutants may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fire for volcanic eruption. So natural phenomena है volcanic eruption. When there is volcanic eruption means क्या? ये mechanism क्या है? You know that अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है? लावा इज स्टोर्ड. जैसे जैसे द वे वी आर गोइंग इनसाइड द अर्थ, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली. ओके, when this temperature is increased immensely, tremendously, तो क्या होगा? when volcanic eruption is there, जब वो molten lava, when it comes out from the crust, definitely there is possibility of forest fire. forest fire होता है, तो ये natural mechanism से हुआ. forest fire हो गया means there is evolution of smoke, dust, and there is air pollution. This is forest fire. These two images I have shown. But majority of air pollutants are added to the atmosphere due to various human activities. This whatever I have discussed, जैसे volcanic eruption का है, तो it is not frequently done. ये बहुत frequently नहीं हो रहा है. Rarely it's happen. But whatever the human activities, I think if you will calculate second by second, even though the rate of air pollution done by human beings is huge, okay, so this human activities you should control. So whatever the automobiles we are using, हम जो कार है, ट्रक है, then बाइक है, जो हम vehicles we are running, उसमें से जो air pollution होता है, उसमें से जो from that automobiles whatever the amount of carbon dioxide is released in atmosphere, that is huge. One more thing is whatever the industries we are running, that industries also making lots of air pollution, lots of toxic gases they are released. And we are staying in Ankleshwar, so we are having the experience, I think huge experience we have ki how much air pollution we are facing due to these industries. The chart I have displayed on your screen students. So air pollutant है and उसके sources है. सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, उसका सोर्सेस क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. मोस्ट ऑफ द दिस एयर पोल्यूटेंट्स एंड इट्स सोर्स इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. सल्फर डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल का बर्निंग है. ऑटोमोबाइल्स आर ऑल्सो रनिंग ऑन द फॉसिल फ्यूल्स. देन रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम चेन, दिस इज द चेन, ये फॉसिल फ्यूल का चेन ही है. रिफाइनरी ऑफ पेट्रोकेमिकल्स मीन्स क्या है? जनरेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, वहाँ पे वही होता है. नीचे से जो निकालते हैं फॉसिल फ्यूल्स एंड उसका क्या होता जाता है? सेपरेशन ऑफ पेट्रोल्स एंड डीजल. सो इन ऑल द प्रोसेसेस and that volcanic eruption also sulfur dioxide is released in air. Oxides of nitrogen NO2, NO3, तो ये क्या है? सेम थिंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. देन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्सेस ऑफ कार्बन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स रन होते हैं, देयर इज उसमें क्या हो रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 रिलीज्ड. देन एसिड फ्यूम्स, HNO3 है, SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है. दिस आर द एसिड्स, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड. एसिड फ्यूम्स मीन्स एसिड हमने ऐसे रखा, उसमें से जो वेपर्स पास हो रहे दैट इज एसिड फ्यूम्स. तो वो क्या है? वी आर गेटिंग फर्टिलाइजर से मिलता है एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में से दिस एसिड फ्यूम्स आर रिलीज्ड. देन स्मोक का कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से स्मोक. ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल यू नो दैट. डस्ट, तो स्टोन क्रशिंग, वुड वर्क, वोल्केनिक इरप्शन, इसमें से डस्ट का हो रहा है. इवन जो हम व्हीकल्स रन कर रहे हैं उसमें से भी डस्ट का, देयर इज रिलीज ऑफ डस्ट.
देन लीड कंपाउंड्स, लीड इज़ वेरी हार्मफुल एक्चुअली मेटल। तो ये क्या है, ऑटोमोबाइल्स का जो एग्जॉस्ट ऑन बर्निंग पेट्रोल पे चल रहा है, बट दैट वो जो ऑटोमोबाइल्स है उसका क्या है, उसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, बहुत दिन हो गए, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये लीड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इट इज़ रिलीज्ड। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट प्लेस वेरी आई थिंक वेरी क्रुशियल रोल इन द ओजोन लेयर का जो उसमें होल हो रहा है, तो कार्बन फ्लोरोकार्बन इज़ द इम्पोर्टेंट दिस गैस इन दिस फिनोमिना, यू नो। इसकी वजह से क्या हो रहा है और कहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहा है, जो रेफ्रिजरेटर वी आर यूजिंग, एयर कंडीशनर्स वी आर यूजिंग, स्प्रे कैंस वी आर यूजिंग, तो उसमें से दिस गैस इज रिलीज्ड एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल कम टू नो what are the harmful effects, automatically you will think about कि how could I put remedies, how could I go through the way this air pollution will be minimized. Then air pollution cause various health issues, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी इसका बहुत हैजार्डस इफेक्ट्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इट इज़ व्हेन इनहेल्ड इन एक्सेस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जाता है तो इट मे कॉज डेथ, इट मे कॉज अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, एंड वो कंटिन्यू रहा तो देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑल्सो। हाउ दिस इज हैपन? Actually this carbon monoxide, it is bind with hemoglobin. Hemoglobin means Hb. It is present in blood. हमारा जो blood है उसमें Hb present है, Hb है आयरन कंपोनेंट है, इसकी वजह से our blood has the red color, you know. इसका फंक्शन ऑफ ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड, प्योर ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन इट रीच, वो हमारी बॉडी में ऐसा फ्लो होता है एंड इट गिव्स ऑक्सीजन टू वेरियस ऑर्गन्स, डेफिनेटली ऑर्गन्स मीन्स वेरियस सेल्स। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ बाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड ये जो ऑक्सीजन कैरिंग का जो कैरेक्टर है उसका, वो उसका कम कर देता है, बिल्कुल कम कर देता है। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सेल क्या हो जाएगी, वो डेफिशिएंट हो जाएगी एंड उसका मैकेनिज्म कम हो जाएगा, उसका आउटपुट कम हो जाएगा एंड विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड वो सेल्स विल डाई एंड हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इट लीड्स टू द डेथ ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। सो दिस इज द मैकेनिज्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। NO2 है, NO3 है। NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 मीन्स नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। Fumes coming out of chemical industries cause irritation in eyes, nose and throat. ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसकी वजह से लंग कॉन्गेशन होता है, मीन्स लंग पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, इट कैनॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, ये जो इसका इंडस्ट्रीज में से जो फ्यूम्स निकल रही है इससे हमें इरिटेशन हो सकता है आइज़ को, नोज को, स्किन को, इवन थ्रोट को भी, बिकॉज एसिड फ्यूम्स जा रहे हैं एंड इट मेक दिस। Then particles of lead oxide present in the automobile exhaust can cause mental disorder. जो lead के बारे में हम बात कर रहे हैं, lead means PB. Chemical name simultaneously I am telling you students, you will have in 9th and 10th class. So I am just making awareness. So ये जो lead है, lead की वजह से क्या हो सकता है, आपका brain damage हो सकता है। I think बहुत सारे सेलिब्रिटीज आई हैव सीन, मीन्स बहुत सारे मीन्स आई हैव हर्ड अबाउट लॉट्स ऑफ द रिनाउंड पर्सनालिटीज जिनका डेथ ब्रेन डैमेज से हुआ है। सो इट इज़ ड्यू टू द पोल्यूशन। या इवन वन मोर थिंग, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, मीन्स मेंटली जो हमारी बॉडी वर्क कर रही है इट कुड नॉट वर्क, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें डिस्टर्बेंस इट विल हैपन ड्यू टू लेड। पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन एयर कैन कॉज ब्रोंकाइटिस, जो हमें रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकता है। सो दिस वर द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन according to the health issue. हमने health से in terms of health we have discussed. Now we will moving towards the next topic, that is acid rain. So acid, I said I have given you example, sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid. So these are the examples of acids. ये acid rain क्या है भाई? So acid rain means क्या, rain में there is अमाउंट ऑफ एसिड इंक्रीज, बहुत ज़्यादा एसिड आता है रेन के साथ एंड वो बारिश को, वो रेन को वी आर कॉलिंग एसिड रेन। हाउ इट इज़ पॉसिबल?
जब एसिड फ्यूम्स जाती है एटमॉस्फियर में, व्हेन एसिड फ्यूम्स गो रिलीज, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, जैसे फर्टिलाइजर का एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है तो दैट एसिड फ्यूम्स गो टू द एटमॉस्फियर में जा रहे हैं, एंड एटमॉस्फियर में जाने के बाद क्या होता है, रेन के साथ इट कम्स टूवर्ड्स, वो इट इज़ कम इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल और डीजल produces carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur oxide, nitrogen and unburned hydrocarbons. Okay, so these are all pollutants. All oxides of sulfur and oxides of nitrogen, sulfur के and nitrogen के जो oxides है react with the water vapor. Water vapor present होते हैं हमारे atmosphere में, उसके साथ वो react होते हैं to form sulfuric acid and nitric acid. सपोज जैसे H2O है एंड ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, SO2 है प्लस H2O है, तो वहाँ पे H2SO3 एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। सो वो जब आएगा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रेन तो इट विल वो एसिड रेन होगा। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स मेक्स द रेन एसिडिक। तो क्या है, द रेन वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। जो रेन वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन हैज़ वेरी हैजार्डस इफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सभी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, लिविंग नॉन लिविंग, सभी में क्या है, वेरी हैजार्डस इफेक्ट। एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल का एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम इनफर्टाइल, उसका फर्टिलिटी विल लॉस। एसिड रेन मेक्स द वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर एसिडिक, जो भी वाटर बॉडीज है उसका वाटर क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, एंड इट इज़ डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनका लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। दे विल कॉज मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। एसिड रेन डिस्ट्रॉयज मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग्स अक्रॉस द इंडिया। यू कैन सी डिफरेंट precious, beautiful, amazing temples are present if you will move from south to north, north to south, wherever you want to go. तो इतने precious temples हैं, forts हैं हमारे ancestors ने, जिसको they have built it, उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो हमारे monuments हैं। तो that monuments, even the building, जो whatever we are staying, तो सभी पे क्या होता है, this acid rain effect very एडवर्सली, बहुत बुरा उसका इफेक्ट होता है। एसिड रेन प्रमोट्स करोजन ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स लाइक रेलवे ब्रिज एंड गेट्स। सो रेलवे ब्रिज ये क्या है, दिज आर द वेंस ऑफ मेट्रो सिटीज़। मेट्रो सिटीज़ का वेंस है, वेंस मीन्स क्या बोलते हैं हम उसको, हमारी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे वो ये रेलवे ट्रैक जो है, रेलवे है, ट्रेन से, वो इतना इम्पोर्टेंट है। एंड एसिड रेन से अगर वो ट्रैक ही करोजन होके इफ इट विल डैमेज, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल, यू नो। एयर पोल्यूशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मैकेनिज्म है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? जनरली ग्लोबल वार्मिंग के लिए 2-3 डेंजरस गैसेस आर देयर। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज नॉट अ पॉइजनस गैस, बट कार्बन डाइऑक्साइड इतना पॉइजनस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ द प्रॉपर्टी टू ट्रैप सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो जो सनलाइट सन के पास से इट इज कम्स टूवर्ड्स द अर्थ पे आ रहा है, तो वो ट्रैप करता है दैट सोलर एनर्जी को, दैट सनलाइट को, एंड उसके पास ज़्यादा रहेगा तो ये जो उसका हीट है, सनलाइट मीन्स क्या, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ हीट, तो इट विल रिमेन ऑन अर्थ। जनरली मैकेनिज्म है, सनलाइट आएगा एंड इट विल रिफ्लेक्ट होके थोड़ा सा एब्जॉर्ब बाई अर्थ एंड वो अगेन इट विल गो बैक एटमोस्फियर में चला जाएगा वो। बट CO2 की वजह से उसका ज़्यादा अमाउंट, द मोर अमाउंट ऑफ दिस हीट एनर्जी रिमेन्स ऑन द अर्थ एंड साइमल्टेनियसली द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस एंड दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के एक तो CO2 है, द कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक CO2 है। द फेनोमेना वेयर बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप्स सोलर रेडिएशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन एंड CFC। कार्बन फ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस के गैसेस है। इनकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन से ओजन लेयर को होल हो जाते हैं एंड फ्रॉम देयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदर आ जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू दिस थ्री गैसेस आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस, एंड जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग।
The increase in amount of greenhouse gases beyond natural limit is a cause of concern. It is the cause of concern. ये जो इसका increase हो रहा है green house gases का, वो beyond the limit जा रहा है, and जिसकी वजह से global warming हो रहा है, and global warming से I'll tell you what are the effects. This is called global warming. So global warming is rise in temperature of the atmosphere of the earth due to the increase in greenhouse effect. I hope you understood, student. First of all, the greenhouse effect, and automatically it related to the global warming. Now damaging effect of global warming क्या है? पोलार कैप्स मीन्स जो आइस प्रेजेंट है एंटार्क्टिक एरिया में, जो ग्लेशियर्स है सी में, हिमालयाज. सो पोलार कैप्स वुड मेल्ट एंड वाटर वुड फ्लो इनटू द सी. पोलार कैप्स अगर मेल्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली तो वो जो सी लेवल का वाटर है उसका क्या हो जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा. लो लाइंग एरियाज नियर कोस्ट वुड बी सबमर्ज. जो लो लाइंग एरिया है कोस्ट का वो क्या हो जाएगा, इट विल सबमर्ज इनटू द सी. I want to elaborate with the help of just a simple example. You can correlate across the globe. I'm taking the example of Mumbai. हम मुंबई का एग्जाम्पल लेते हैं. ऐसे ही चलता रहेगा तो विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड मुंबई विल सबमर्ज इनटू द सी, चला जाएगा, बिकॉज दैट इज इन द कोस्टल एरिया, यू नो. सो क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न वुड चेंज. क्लाइमेट क्या होता है, 20, 30, 50 ईयर्स का जो है क्लाइमेट, वो पैटर्न ही चेंज हो जाएगा. देन उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो हम द वे वी हैव द क्लाइमेट एंड द रेनफॉल का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग वी आर प्लानिंग द फूड, सॉरी वी आर प्लानिंग द क्रॉप्स, यू नो. तो ये सब कुछ डैमेज हो जाएगा. तो अल्टीमेटली लास्ट क्या हो जाएगा इफेक्ट, ये जो मिल रहा है वी आर गेटिंग फ्रॉम द फार्मर्स, तो इट विल डिस्टर्ब एंड इट विल अफेक्ट वेरी डेंजरसली ऑन आवर लाइफ. Now, air pollution causes depletion of ozone layer. Ozone layer का chemical formula है O3. 3 ऑक्सीजन के एटम्स आते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ओजन लेयर, ओजन गैस, O3 बोलते हैं उसको, एंड इट इज़ फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर. हमारे एटमॉस्फियर के स्ट्रेटोस्फियर में इट इज़ प्रेजेंट. एंड ये क्या है, इसका ब्लैंकेट है, इट हैज़ द ब्लैंकेट ऑन द अर्थ को ऐसे उसने कवर किया हुआ है. ड्यू टू दिस वट एवर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाई सन, इट कुड नॉट कम ऑन द अर्थ. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर लाइफ. वो हमारे बॉडी के लिए इवन वट एवर द नॉन लिविंग थिंग्स उनके लिए बहुत हार्मफुल है. एंड इसकी वजह से क्या होगा, वो रेडिएशन अगर नहीं आएगा हमारे अर्थ पे तो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी गुड. ये जो रेडिएशन है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द ओजोन लेयर, इट एक्ट्स ऑन द ब्लैंकेट अर्थ, बट ड्यू टू द कार्बन फ्लोरोकार्बन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इट क्रिएट्स होल, ओजोन लेयर को होल बना रहा है. ड्यू टू दिस दैट अल्ट्रावायलेट डेंजरस रेडिएशन कम ऑन द अर्थ एंड द कैंसर पेशेंट्स आर इंक्रीज. जो स्किन का कैंसर हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, इवन इट इज़ अफेक्ट ऑन द एक्वाटिक लाइफ ऑल्सो. सो ड्यू टू दिस द क्या हो रहा है, इट अफेक्ट्स ऑन द लाइफ. नाउ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन्स CClF. नाउ डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसकी वजह से क्या क्या व्हाट आर द इफेक्ट्स, क्या हो रहा है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचिंग द अर्थ कॉज वेरियस डिसीजेस इन ह्यूमन बीइंग. जो कैंसर है, बहुत सारे डैमेजेस हो रहा है. हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द जीन. जो जीन हमारा होता है, जीन्स प्रेजेंट इन हमारी बॉडी में होता है, एंड इट पासिस द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं, तो ये जीन में ही क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इट डैमेज, और हमारे बॉडी में डिसऑर्डर आते हैं ड्यू टू दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज डैमेज टू अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फिश, calves and other animals. It is affect dangerously on the aquatic bodies also. So this ozone layer में जो depletion हो रहा है, it is due to the CFC. There is a massive hole in the ozone layer right above the Antarctica. So this is the practical knowledge. कहाँ पे है, कहाँ पे ये ओजोन लेयर में होल देखने को मिल रहा है, राइट अबाउट द अंटार्कटिका. द होल ओवर द अंटार्कटिका हैज़ बिन एक्सपांडिंग फॉर मेनी ईयर्स. बहुत दिनों से क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है.
for many years, now exposing the populated area of South America to harmful ultraviolet radiation of the sun. And South America face कर रहा है ये जो whatever the problems I have discussed. Now we will move towards the methods of prevention and control of air pollution. By which way we can control the air pollution? हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को? यूज़ मॉडर्न ऑटोमोबाइल. जो भी ऑटोमोबाइल्स यू आर यूजिंग, व्हीकल्स यू आर यूजिंग, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला है. वी शुड यूज़, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट विल बर्न प्रॉपरली एंड इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन. नहीं करेगा. यूज़ इको फ्रेंडली क्लीन फ्यूल्स लाइक CNG हमें यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. एंड जहाँ पे जो खाना बनाने का है इन द किचन, वी कैन रिप्लेस द वुड एंड द केरोसिन बाय द LPG. यूज़ अनरिलीज पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल. जो भी हम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, make sure it is in the pure form. And you need to understand this concept very carefully, students, because it is in future generation hand. We are also doing some remedies. These are the prevention, these are the remedies to reduce the air pollution. देन रेगुलर पोल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल्स शुड बी मेड मैंडेटरी. ये मैंडेटरी होना चाहिए. जो डेली का पोल्यूशन चेक करने वाले द पीपल हु आर फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे हैव टू डू देयर जॉब वेरी ऑनेस्टली. ग्रो मोर ट्रीज एंड प्लांट्स. आई थिंक दिस इज द फंडामेंटल वे बाय विच यू कैन रिड्यूस द पोल्यूशन, बिकॉज ट्रीज आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, सो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस द पोल्यूशन. सो वी हैव टू गो थ्रू दिस रेमेडी. यूज़ रिसाइकल्ड पेपर. दिस इज़ ऑल्सो वन मोर रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू डू स्टूडेंट्स की हमें रिसाइकल्ड पेपर यूज़ करना चाहिए. वन मोर स्टेप आई वॉन्ट टू गो अहेड कि whenever it is possible to reduce the use of papers का यूज़ कम करो. You can use the technology to communicate. You can use the technology to make your knowledge awareness. So the use of paper will reduce, and automatically paper formation में trees are using, so automatically we can save the trees. Then replace wood, coal or kerosene with the LPG that I have discussed already. Encourage use of less polluting energy resources like hydroelectric energy, solar energy and wind energy. सोलार एनर्जी का तो वी कैन यूज़ इट. हम किस में यूज़ कर सकते हैं? द सोलार पैनल के हेल्प से हम वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. यू नो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन माइट बी लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग. बहुत सारे बिल्डिंग्स पे आई हैव ऑल्सो ये सोलार एनर्जी का पैनल आई हैव टेकन. हम उसमें क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज़ द हॉट वाटर, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअली दिस एनर्जी वी आर गिविंग टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं, GEB को हम देते हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग अस द एनर्जी. वो एनर्जी वो हमें दे रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल. विंड एनर्जी वी कैन use for generation of the electricity. Then organize awareness campaign. Now in this pandemic it is not possible, but whenever it is possible ऐसे हमें campaign use करने चाहिए कि organize करने चाहिए. Due to this we will make the awareness in people, reduce air pollution by this way. These are the remedies. I think students it was useful to you. You have enjoyed it a lot and lots of things you come to know. So thanks for watching this video and bye bye.